یہ ہے وہ جگہ جہاں عام عوام کا جانا بھی منع ہے، پر جانا تو ہے، کیونکہ یہاں ہوتے ہیں ہماری قسمت کے فیصلے، بجٹ، قانون سازی، سپریم ڈیسیجنز، اور بعض فیصلوں پر تو ڈیسک بھی بجائے جاتے ہیں۔ اٹس آل اباؤٹ دھرنا، احتجاج، پروٹوکول اینڈ واک آؤٹ۔ دس از ریڈ زون ود ساجد اسحاق۔ جی السلام علیکم ناظرین، ریڈ زون کے ساتھ آپ کا ہوسٹ ساجد اسحاق آپ کے سامنے حاضر ہے۔ ناظرین، ہم بات کریں گے ایک خبر جو گردش کر رہی ہے پچھلے چند دنوں سے، اور سوشل میڈیا پہ اور مین سٹریم میڈیا پہ اس کی کافی بات ہو رہی ہے، تو ہم نے مناسب سمجھا کہ ان کے حقائق کو جان سکیں کہ کیا وجوہات ہیں اس کے پیچھے کہ یہ اتنا ہائپ کیوں کریٹ ہوا۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ نیشنل اسمبلی کے ایک نمائندے جو ہیں ہمارے ایم این اے مائنورٹی کے، رمیش کمار صاحب، جن کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، انہوں نے حال ہی میں آرٹیکل 37 جو ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 37H جو اس کا کلاز ہے، اس کے اوپر ایک بل لانے کی کوشش کی تاکہ اس کے اندر امینڈمنٹس کرائی جا سکیں۔ اور وہ بل یہ ہے کہ آرٹیکل جو کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو نان مسلمز ہیں وہ شراب استعمال کر سکتے ہیں۔ اس پہ میں تفصیل سے بات کروں گا۔ ہوا یہ کہ انہوں نے جب بل پیش کیا تو ڈپٹی اسپیکر صاحب چیئر کر رہے تھے اسمبلی کو، انہوں نے مناسب سمجھا، جو کہ ایک طریقہ کار ہے اسمبلی کا، کہ وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ کتنے اس حق میں ہیں اور کتنے اس کی مخالفت میں ہیں، تاکہ اگر حق میں زیادہ لوگ ہیں تو یہ جو ہے اس کو ریویو کے لیے پیش کیا جا سکے کمیٹی کو۔ ہوا یہ کہ جب انہوں نے پوچھا کہ کتنے لوگ سمجھتے ہیں کہ جو رمیش کمار صاحب یہ لے کے آئے ہیں بل 37H، جس میں لکھا گیا ہے کہ شراب نوشی ویسے اسلام جمہوریہ منع ہے، مگر یہ نان مسلم اپنے ریلیجیس فیسٹیولز کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، ان کا ماننا یہ تھا کہ یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ کوئی مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا شراب نوشی کی۔ یہ بیان تھا کمار صاحب کا۔ اس پہ جب ووٹنگ ہوئی تو بہت کم لوگوں نے کہا کہ ہاں اس بل کو آگے موو ہونا چاہیے اپروول کے لیے، جبکہ میجورٹی جو ہمارے لا میکرز ہیں اور جن میں میجورٹی تعداد ظاہر ہے مسلمز کی ہے، انہوں نے اپوز کر دیا کہ یہ بل آگے نہیں جانا چاہیے، بلکہ جو اس شک میں لکھا ہوا ہے اس کو ایز اٹ از ہی رہنا چاہیے۔ اب ہم بات کرتے ہیں آرٹیکل 37 ہے کیا۔ آرٹیکل 37 جو ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا، وہ یہ کہتا ہے کہ پروموشن آف سوشل جسٹس اینڈ ایریڈیکیشن آف سوشل ایول، کہ ہمیں اس کانسٹیٹیوشن کے اس کلاز میں یہ ملتا ہے کہ ہم نے اس میں پروموٹ کرنا ہے جسٹس سسٹم کو، سوشل جسٹس کو، اور ہم نے اس میں کمی لے کے آنی ہے جتنی برائیاں ہیں ہمارے سوسائٹی میں۔ اچھا، اب مزے کی بات یہ ہے کہ شراب نوشی برائی تو نظر آ رہی ہے مسلم کمیونٹی کے لیے، مگر وہ برائی نظر نہیں آ رہی نان مسلم پاکستانیز کے لیے۔ بہت بڑا تضاد یہاں پہ نظر آ رہا ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ شراب نوشی چلنے دو، مگر کس کی آڑ میں؟ نان مسلمز کی آڑ میں۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی جب آئی یہاں پر، انہوں نے کہا کہ ہم مدینہ کی ریاست بنائیں گے۔ اب آپ سب جانتے ہیں کہ مدینہ کے ریاست میں انصاف ہے، مدینہ کے ریاست میں وہ برائیاں نہیں ہیں جو دوسری کنٹریز میں نظر آتی ہے، خاص طور پر شراب نوشی نہیں ہے، ممانعت ہے۔ اس طرح بہت ساری دوسری کنٹریز ہیں جس میں شراب جائز ہے، مطلب وہ جو پینا چاہتا ہے پیے، جو نہیں پینا چاہتا نہ پیے۔ یو اے ای آپ کے سامنے ہے، دوسرے مسقط ہے، دوسری کنٹریز ہے، ملیشیا ہے، انڈونیشیا ہے، آپ کے سامنے ہے۔ مگر جب ہم بات کرتے ہیں مدینہ کے ریاست کی، جب ہم بات کرتے ہیں پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان کی، تو یہاں پر جن کے نام پر آپ نے رکھا ہوا ہے کہ ان کے نام پر شراب فروخت ہو سکتے، وہ خود مطالبہ کر رہے ہیں، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہمارے مذہبوں کو بیچ میں مت لے کے آئے، پاکستان میں
9 अक़लियतें बसती हैं। वो सारे ये कह रहे हैं कि 37 एज जो है बिल्कुल गलत है, क्योंकि किसी के मज़हब की तौहीन करना किसी को गवारा नहीं होना चाहिए, किसी की जुर्रत नहीं होनी चाहिए कि आप किसी मज़हब को, नॉन मुस्लिम के सारे मज़ाहिब जो आप उसमें डाल दिए आपने, कि वो कर सकते हैं, जबकि बाइबल भी यही कहती है, गीता भी यही कहती है, सिखिज़म भी यही कहता है, बहाइज़ भी यही कहते हैं, दूसरे मज़ाहिब भी यही कहते हैं कि शराब हराम है और वो बुराई है। जब आप सोशल जस्टिस की बात करते हो, एरेडिकेशन ऑफ सोशल ईवल्स की बात करते हो, तो आप उधर से तो ख़त्म कर रहे हैं, तो आप समझते पाकिस्तानी नहीं है और जो नॉन मुस्लिम्स हैं यहाँ पे। बराबरी, खान साहब, बराबरी मांगते हैं हम इज़्ज़त मांगते हैं, हम अपने मज़ाहिब का तहफ़्फ़ुज़ मांगते हैं, हम अपने मज़ाहिब की रिस्पेक्ट मांगते हैं जो आपने वादे किए थे। और अगर आपको याद हो खान साहब, 2012 में दिसंबर 17 को इंटरफेथ क्रिसमस डिनर पे आप तशरीफ़ लाए थे और मैंने आपको ये पॉलिसी दी थी। उसमें ना सिर्फ 37 एज थी, बल्कि उसमें दूसरे आर्टिकल्स भी थे जो कि डिस्क्रिमिनेट करते हैं हमें। और जब आपने नहीं किया तो मैं बहुत पहले समझ गया कि पॉलिटिकल विल नहीं है पीटीआई में। मेरा ख्याल है कि अब मेरे भाई रमेश कुमार को भी समझ आ जानी चाहिए, जो कि नून से गए थे छलांग मार के पीटीआई में, कि तब्दीली आप लेके आएंगे। आपकी अपनी जमात ने, रमेश कुमार साहब, आपको रद्द कर दिया। आपकी अपनी जमात ने, रमेश साहब, आपके बिल को रिजेक्ट कर दिया। और मैं नाज़रीन को दिखाना चाहता हूं कि चौधरी फवाद ने क्या बात की। फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि ये सस्ती शोहरत के लिए बात कर रहा है। सुनिए क्या कह रहे हैं वो। लेकिन उसमें कोई हिंदू का लफ्ज़ तो नहीं लिया, गैर नॉन मुस्लिम्स लिखा हुआ है उसमें, गैर उन्होंने जो है वो किया। वैसे रेगुलेटेड है सेक्टर। ऐसे ही पाकिस्तान में हमारा रवाज भी बन गया है, सस्ती शोहरत के लिए इस तरह की बातें जो हैं वो करते रहते हैं। रमेश कुमार साहब ने सस्ती शोहरत के लिए और किया। क्या इसमें, और क्या है इसमें रखा हुआ, और इसमें क्या है, कितना जो है अपना जो यहाँ पे कानून के ऊपर या करने से क्या हो जाएगा। जिसने पीनी है वो पीता रहेगा, जिसने नहीं पीनी उसने फिर भी नहीं पीनी। अच्छा, जितने लोग हमारे बाहर यूरोप में मुसलमान हैं वो फिर क्या कहेंगे, वो पाबंदी की होगी तो वो होगा। और ये ऐसी सस्ती। और इसके बाद मैं दिखाना चाहता हूँ कि जिरगा में ताहिर शरफी साहब ने, रमेश कुमार ने और फवाद चौधरी ने क्या बात की। तो फिर मदीना मुनव्वरा की तर्ज की रियासत में तो ये काम जो है वो नहीं हो सकता है। वैसे तो इस मुल्क में 70-74 साल से हो ही रहा है और कोई रोकने वाला नहीं है। और जो हमारे वजीर इत्तलाआत ने कहा कि जी जो जिन्होंने पीनी है वो पी लेते हैं, जिन्होंने नहीं पीनी है वो नहीं पीते हैं। मेरा ख्याल है कि इस फलसफे को भी हमें ख्याल करना चाहिए, वरना कल हम कहेंगे जिसने चोरी करनी है कर ली, उसको सजा आप क्यों देते हैं। चोर चोरी कर लेगा, डाकू डाका मार लेगा, करप्शन करने वाला करप्शन कर लेगा, तो फिर पकड़ते क्यों है, छोड़ दें, उसने ये काम कर लिया है। आर्टिकल 37 में कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि ये हिंदू मजहब जो है उसमें जायज है और इसलिए वहां पे जो है वो किया। ये कहीं लिखा ही नहीं हुआ आर्टिकल 37 जिसकी ये अमेंडमेंट मांग रहे हैं। अगर आप वो पूरा दिखा लें, वहाँ पे पढ़ लें। मैंने ये सवाल किया था इनसे, इन्होंने कहा कि नॉन मुस्लिम है और हम भी नॉन मुस्लिम में आते हैं। नॉन मुस्लिम नहीं, का तो ये क्या बात है, ये क्या बात है। कई नॉन मुस्लिम होंगे कि जिनकी जो कहते होंगे कि नहीं होना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ ये है, प्रॉब्लम ये है कि कल ये हम कर दें, उसके बाद अगला मुतालबा आ जाएगा कि औरतें घरों से ना निकलें। उसके बाद अगला मुतालबा आ जाएगा कि जी यहाँ पर अकलियतें जो है वो जजिया सारा दिया करें और उसके चले। तो मैं आपसे कह रहा हूँ ये अभी नहीं है। आप जो भी आगे चलते जाएंगे इनकी बातें, और ये तो खैर रमेश कुमार तो हमारे तो दोस्त हैं, लेकिन इनको तो वैसे ही इनको जरा एक किस तरह का शौक है कि वो अब अपना जरा मीडिया वगैरह पे रहने का, और वो ठीक है, वो उसमें उनके पॉलिटिशियन फिर आप गलत कह रहे हो, फिर आप गलत कह रहे हो। मीडिया के ऊपर रहने का शौक, मैं आपसे पुराना सियासतदान हूँ, 2002 से पता है, और पहली मर्तबा पार्लियामेंट में नहीं आया हूँ। और ये बात नहीं करे, मैं इसूलों की जमीर को ये आज से नहीं है, मैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में उधर भी गया हूँ इस हवाले से। नहीं, वो तो आप नॉमिनेट होके आए हैं ना, कौन सेलेक्ट होके आए। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये जो दूसरा मामला ये है कि मैंने जिस तरह से आपको अर्ज ये किया, मैंने आपसे ये किया कि आपने एक फैसला, मुझे कोई इतराज नहीं अगर पाकिस्तान के लॉ मेकर्स और हम सोसाइटी के तौर पे फैसला करते हैं कि पाकिस्तान जो है उसको हमने कायदे आजम का और इलामा इकबाल का पाकिस्तान नहीं बनाना, और
جو रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं, जो कि मेरी नज़र में बहुत ही प्रोग्रेसिव तालीमात हैं। रमेश कुमार साहब, आपकी अप्रोच ठीक थी बिल जमा कराना, मगर मैं एक माजरत के साथ आपको एक बात बताना चाहता, बहुत सीनियर पॉलिटिशियन है, मगर पॉलिटिशियन में जब होता है सियासत में लॉबी बहुत ज़रूरी होती है, एडवोकेसी बहुत ज़रूरी होती है। आपने वही काम किया जो हमारे दूसरे जो सियासतदान करते रहे नॉन मुस्लिम्स के, सिर्फ दिखावे के तौर पर बिल पेश किया, शोर शराबा डाला, रिजल्ट कोई नहीं आया, ताकि उनको नज़र आए माइनॉरिटीज़ को कि हमारी आवाज़ बन के बोल रहे हैं। इसका कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा मैं इसलिए कह रहा हूँ नहीं है क्योंकि आपको लॉबी करना बहुत ज़रूरी थी, कम से कम अपनी जमात के अंदर। आपने उठा के बिल पेश कर दिया, आपके साथ आपका एक बंदा भी शामिल नहीं था पीटीआई का, जिनको आप रिप्रेजेंट कर रहे। अगर आपकी हुकूमती पार्टी आपके साथ शामिल नहीं है तो अपोजिशन को तो छोड़ दीजिए आप। और यहाँ पे मैं आपसे कहूँगा कि ज़रूरत इस चीज़ की थी कि आप पहले काउंट करते, हेड काउंट करते कि आपके साथ लोग कितने हैं। आपके साथ लोग नहीं हैं रमेश कुमार साहब। अफसोस की बात यह है कि ये नहीं हक देना चाहते, ये नहीं हक देना चाहते माइनॉरिटीज़ को, ये नहीं हक देना चाहते नॉन मुस्लिम पाकिस्तानीज़ को। और बातें करने में पीपल्स पार्टी भी किसी से पीछे नहीं है, पीटीआई सबसे आगे है, नून है, दूसरे हैं कि हम बराबरी की देंगे सतह पर इनको हकूक, हम इनकी रिस्पेक्ट को मेंटेन करेंगे। आपके सामने आपको अपनी इज्जत का पता लगा कि हम नॉन मुस्लिम्स की क्या औकात है। और मैं आपको बता दूं, मैं पहले भी शोर डालता रहा, अब भी कर रहा हूं कि इलेक्शंस होने चाहिए, सिलेक्शन नहीं। वो समझते हैं आप खैराती सीट पे जाके बैठे हुए हैं वहाँ पर, ना सिर्फ आप, मैं माजरत के साथ कह रहा हूँ, जितने नॉन मुस्लिम हमारे नुमाइंदे हैं, इनका मेजॉरिटी का मानना यह है कि आप खैराती सीटों पर हैं, आपको असेंबली में बोलने का हक नहीं है। आपने वही बोलना है जो वो कहेंगे, आपने उसी चीज़ पर अंगूठा लगाना है जो वो कहेंगे। तो ये आपको असेंबली का नुमाइंदा मानने के भी मैं तैयार नहीं, जिस तरह की बात फवाद चौधरी साहब ने की। इससे आगे चलते हैं कि 1973 में जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, आज तक 27 अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं। अपने मतलब की सारी अमेंडमेंट्स हमने कर ली, 18वीं तरमीम कर ली, जिसके ऊपर आजकल बहुत बड़ा शोर मचा हुआ है। मगर जब अक़लियतों की बारी आई, जब हमने कहा कि हमारी सीटें बढ़ाई जाएं, तो फिर कहा गया कि नहीं, सेंसिस होंगे तो बढ़ाएंगे। सेंसिस भी हो गए, अभी तक वहाँ की वहीं सीटें हैं। जब कहा गया कि 37 एज को अमेंड करो, तब किसी ने साथ नहीं दिया। ये हिस्ट्री हमें याद रहेगी, ये बात हमें याद रहेगी कि हमने एक मुतालबा जायज़ किया और आपने नहीं माना। हमने कहा कि इलेक्शंस को बहाल करो क्योंकि सिलेक्शन नहीं चाहिए। ये ऐसा ही है जैसे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, उनको लोग कई कहते हैं सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, जो कि बुरा लगता है। इसी तरह हम नहीं चाहते हमें कोई कहे कि सिलेक्टेड नुमाइंदे हैं, इलेक्टेड होने चाहिए। जब बात आती है माइनॉरिटीज़ की अमेंडमेंट्स के लिए, यहाँ कोई अमेंडमेंट नहीं होती। 73 से लेकर आज तक आप मुझे बताएं किस चीज़ पे अमेंड किया। हाँ, हम पीपल्स पार्टी को एक चीज़ से क्रेडिट ज़रूर देना चाहेंगे, जिन्होंने सेनेट में 4 सीटें मंजूर की। मगर उसके बाद हम देखते हैं कि जो जायज़ मुतालबात है उसके ऊपर खामोशी क्यों है। पीटीआई के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि आपने जो वादे किए हैं, आपने जो वादे किए हैं, जो ख्वाब दिखाए हैं, ना सिर्फ माइनॉरिटीज़ को बल्कि पूरी पाकिस्तानी कौम को, आज कौम आपके सामने खड़ी होकर पूछती है कि वो वादे कब अमल होंगे, वो वादे कब आप पूरे करेंगे। और इसके साथ ही मैं पीएम साहब से, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से और जितने लॉ मेकर्स हैं उनसे आज रिक्वेस्ट करूंगा कि खुदा के लिए तासुब छोड़ें। जो हम चाह रहे हैं एनलाइटेंड पाकिस्तान, जो हम चाह रहे हैं कायद का पाकिस्तान, जो आपकी विजन है मदीना की रियासत, उसमें तो तासुब है ही नहीं है। उसमें तो नॉन मुस्लिम्स की ज़्यादा इज्जत है, उसमें तो उनकी ज़्यादा प्रोटेक्शन है। तो क्यों हम
बातें कुछ करते हैं और अमल कुछ करते हैं। अब पाकिस्तान में दो चीज़ें अगर हम कर लें, पॉलिटिकल विल और रूल ऑफ लॉ, तो मैं समझता हूं कि यहाँ पर सबको बराबरी के हकूक मिलेंगे। कोई शोर नहीं करेगा कि उनके मज़ाहिब की रिस्पेक्ट नहीं हो रही। आखिर में मैं ये बात करना चाहूँगा कि 37 एज पे जो डिस्कशन हो रही है इसको रिव्यू कीजिए। आखिर में मैं कहूँगा कि 37 एज पे जो बात हो इसको रिव्यू कीजिए, क्योंकि ये जायज़ मुतालबा है। ये आप ना सिर्फ गैर मुसलमान को तहफ़्फ़ुज़ देंगे बल्कि आप उनके मज़ाहिब की इज़्ज़त को इंश्योर करेंगे। और अगर आप ये नहीं करते तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान के जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो पहले मायूस हो चुके हैं पीटीआई से, और अगर आप ये नहीं करते तो मैं समझता हूँ कि फिर मायूसी उनका हक है। मगर इस मायूसी को तोड़ना आपका फ़र्ज़ है कि आप उनको हकूक़ दें, उनके जायज़ मुतालबात मानें, ताकि पाकिस्तान को हम मिलकर अमन का गहवारा बना सकें। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये है वो जगह जहां आम आवाम का जाना भी मना है, पर जाना तो है, क्योंकि यहां होते हैं हमारी किस्मत के फैसले। बजट, कानून साजी, सुप्रीम डिसीजंस और बास फैसलों पर तो डेस्क भी बजाए जाते हैं। इट्स ऑल अबाउट धरना, एहतजाज, प्रोटोकॉल एंड वॉकआउट। दिस इज रेड जोन विद साजिद इसाक।